Hello everyone, welcome to SNET Pathshala. Today we are going to study the topic connotation and denotation. In previous class we have covered your deductive reasoning and inductive reasoning and the basics of your structure of arguments, right? Now we'll move forward to connotation and denotation. So denotation is basically the first level of analysis, what the audience can visually see on the face of it or on a page, etc. Whereas connotation is at the second level of analysis. Connotation is the extra meaning or feelings the word may invoke, right? Denotation would be straightforward and literal meaning, whereas connotation may change based on the situation or context, in which context we are using that particular word. Denotation is the basic dictionary meaning basically, right? Now, as we see the example snake here, in denotation we see that a snake is a legless reptile, whereas if I see if the I see connotation of a snake, so snake connotes danger or betrayal or evilness, right? So when I encounter a snake in a real situation, what will I feel? So the feeling, so what will I feel? Danger. I will feel danger from that reptile. I will feel fear. So that is the difference, main difference. So connotation is the feeling which a person invokes in itself, whereas denotation is your basic meaning. So denotation is extensional, whereas connotation is intentional. Extensional means you are referring to a class. Intentional means you are referring to attributes, you are referring to characteristics, you are referring to qualities. So for example, a cat, all actual cats in the world, right? That's it. Triangle, all specific triangles in existence. For example, equilateral, isosceles, right angle triangle, those kinds. फ्रूट में क्या क्या आ जाता है आपका? एप्पल, बनाना, लीची, मैंगो, राइट? डॉग में आपका जर्मन शेफर्ड, पुडल, लैब्राडोर, पग, etc. Whereas if I see the intentional meaning, if I describe its attributes, तो आपका कैट क्या डिस्क्राइब करता है, कैट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं, वो हमें बताना है. तो फरी, 4 लेग, मियाविंग एनिमल, तो कैट का हमने ये सब जो भी बताया, ये क्या होगा? इंटेंशनल मीनिंग. वेराज ट्राइंगल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो 3 साइडेड पॉलीगॉन है और उसका सम जो है वो 180 डिग्रीज है. Whereas your fruit is a part of a plant that develops from a flower and contains seeds. Dog is a domesticated canine animal. It has 4 legs and it barks. तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो योर EDIC ED is your extensional denotation. IC is your intentional connotation. ED refers class and IC refers attributes. ये बन गई समरी आपकी. अब इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? इससे रिलेटेड आते हैं आपके, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, कंसिडर द सीरीज एनिमल, मैमल, फेलाइन, टाइगर. तो विद रेफरेंस टू दिस सीरीज क्या आएगा? इंक्रीजिंग इंटेंशन, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, डिक्रीजिंग इंटेंशन, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन. तो अगर मैं EDIC, ED is your extensional denotation which refers class. IC is your intentional connotation. ठीक है? IC is your
intentional connotation, it connotes attributes, it refers to attributes. ठीक है, अब हम इसको देखते हुए हम इसको रेफर करेंगे. अब इंक्रीजिंग इंटेंशन मतलब कि एट्रीब्यूट्स की बात करी जा रही है. तो एनिमल जो कि मैमल है, फेलाइन है, और एग्जाम्पल यहाँ पे टाइगर दे रखा है ना. तो ये क्या आपको इंटेंशनल लग रहा है, एट्रीब्यूट्स लग रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहे हैं. ठीक है, आपको भी लग ही रहे होंगे. अब इंक्रीजिंग एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा? अगर मैं यहां लिख दूं टाइगर, डॉग, लेपर्ड, ये सब क्या होंगे? कैट. ये एक तरीके से आपका एक्सटेंशनल हो गया. ठीक है, यहाँ पे क्लास की बात की जा रही है, क्लास जो कैनाइन क्लास है उसकी बात की जा रही है. तो ये एग्जांपल हो गया एक्सटेंशन का. अब डिक्रीजिंग इंटेंशन मतलब डिक्रीजिंग इंटेंशन मींस योर एक्सटेंशन. डिक्रीजिंग एक्सटेंशन मींस इंटेंशन. ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग इंटेंशन AD साथ होगा और BC साथ होगा, क्योंकि हमें पता है कि इंटेंशन इज योर करेक्ट आंसर, और ये AD आ रहा है, तो इसका मतलब योर ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स कम टू दी सेकेंड क्वेश्चन. अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, दीज आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ डिडक्टिव, इंडक्टिव, कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन. ठीक है, तो विच टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज कंसिडर्ड एज पर्टिकुलर टू जनरल? तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग आर्ग्यूमेंट को हमने डिस्कस किया था, तो उस नॉलेज के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे. तो डिडक्टिव में आपको बता देती हूँ, एक क्या शॉर्टकट बता देती हूँ याद करने का डिडक्टिव और इंडक्टिव को. ठीक है, डिडक्टिव जो है वो DGP है, मतलब डिडक्टिव में जनरल टू पर्टिकुलर जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर टू जनरल की बात करिए, यानी कि डिडक्टिव का ऑपोजिट इंडक्टिव. तो विच टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज कंसिडर्ड एज पर्टिकुलर टू जनरल? as simple as I say, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट. ठीक है, अब इसमें दो और ऑप्शंस दे रखे हैं. अब आप ये सोचोगे ये है क्या? तो अब डिडक्टिव तो मैंने बता दिया आपको, डिडक्टिव और इंडक्टिव. अबडक्टिव और इनफॉर्मल नहीं बताया, तो इनको शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या होता है. पहले बताती हूँ अबडक्टिव आर्ग्यूमेंट. अब यहाँ पे ना एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है. अब उसमें उसके बेसिस पे हमें एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है. अब वो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए मैंने गैसेस लगाए ABCD. यहाँ पे जो गैसेस मैंने लगाए, यहाँ पे आपको बेस्ट गैस लगाना है. बेस्ट गैस लॉजिकली जो फॉलो करे, बेस्ड ऑन रीजन. ठीक है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा. लॉजिकली और रीजन तो है ही, पर उसके साथ क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं. अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि बहुत ही जो बेस्ट गेस है ना आउट ऑफ ABCD इज D. बेस्ट गेस. तो ये जो मैंने बेस्ट गेस लगाया, बेस्ट रिजल्ट निकाल के दिया, ये आपका इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो गया. ठीक है, अब इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट आपका बेसिकली ये डिडक्टिव और इंडक्टिव है. डिडक्टिव स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है तो इसे फॉर्मल बोल देते हैं, और इंडक्टिव का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. ये नए ऑब्जर्वेशंस लाता है, नई नॉलेज डिस्कवर करता है, नई नॉलेज डिस्कवर ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस. ठीक है,
और अब ये जो ऑब्जर्वेशन होती है ये सारी ऑब्जर्वेशन नहीं होती है, ये सैंपल डेटा लेते हैं। तो इंडक्टिव क्या हो गया आपका, इनफॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल। ये इनको स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, इनको क्या है कंटेंट से मतलब है, ठीक है। कंटेंट से मतलब है कितना वीक आर्ग्यूमेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, इस चीज से मतलब है। तो समझ में आ गया, एब्डक्टिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड योर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू योर थर्ड क्वेश्चन, which of the following is an example of inductive reasoning? Let's explore ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हो गया आपका प्रमाइस 1। द सन रोज फ्रॉम द दिस साइड, प्रमाइस 2, सो दिस साइड इज ईस्ट, ये हो गया आपका कंक्लूजन। अब अगर आप देखोगे ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, मैंने बताया था डिडक्टिव रीजनिंग में अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जनरल स्टेटमेंट होती है सबसे पहले, और जो प्रमाइसिस 2 होता है वो होती है एडिशनल विद एडिशनल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रमाइस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जनरल से पर्टिकुलर गया, तो ये हो गया आपका डिडक्टिव, याद है ना, डीजीपी, डिडक्टिव, जनरल से पर्टिकुलर। द बॉल आई पुल्ड फ्रॉम दिस बैग, पहला प्रमाइस, इज रेड, I pulled another ball and it is red, premise 2, so all the balls in the bag are red। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस की बात करी जा रही है ना, कि एक बॉल निकाली वो रेड निकल गई, दूसरी बॉल निकाली वो भी रेड निकल गई, तो ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक बेसिकली नई नॉलेज निकालने के लिए, मतलब अब सारी बॉल्स को नहीं देख सकते हम, तो एक मान लो पूरा ट्रक है उसमें बहुत सारे बैग्स हैं, तो सारे बैग्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते ना हम, तो एक आधी बॉल को निकाल के देख लिया कि हाँ रेड है तो सारी रेड होंगी, तो ये एक तरीके की इंडक्टिव रीजनिंग हो गई। तो पर्टिकुलर से जनरल पे आ गए, ऑल द बॉल्स इन दिस बैग आर रेड, तो ये हो गया जनरल और ये हो गया पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर से जनरल मतलब इंडक्टिव, तो हमें अपना आंसर मिल गया, योर इंडक्टिव रीजनिंग, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बाकी की भी देख लेते हैं। सी बोलता है ऑल मेन आर मॉर्टल, फिर से ऑल मेन आर मॉर्टल, यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट आ गई, ही इज अ मैन, इससे रिगार्डेड एक स्टेटमेंट, एडिशनल स्टेटमेंट, देयरफॉर ही इज मॉर्टल, ये एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकला यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट से, तो ये भी डिडक्टिव। all people in the city speak Bengali, he lives in the city, all people in the city speaks Bengali, तो ये हो गया आपका जनरल premise, और ये हो गया premise which is related to your premise 1, premise 1, premise 2 and therefore he is a Bengali, ये हो गया आपका conclusion। तो आपका निकल गया, ये भी एक डिडक्टिव रीजनिंग है, जनरल से पर्टिकुलर पे जा रही है, therefore he is a Bengali, तो डिडक्टिव रीजनिंग आंसर आपको पता ही है। अब given below are two statements, the intentional meaning consists of the qualities or attributes that the term denotes, the extensional meaning consists of the members of the that the term denotes of the class, ठीक है। तो इसका मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, या फिर भी बता देती हूँ, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईसी। ईडी क्या बात करता है, क्लास की, और आईसी एट्रीब्यूट की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंटेंशनल मीनिंग, क्वालिटी, यहां तक तो सही है, इंटेंशनल मीनिंग, क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स बता, दैट द टर्म डिनोट्स, डिनोट्स गलत कर दिया ना, यहाँ पे कर दिया गलत, तो इसे हम स्टेटमेंट को रॉन्ग मानेंगे। द एक्सटेंशनल मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास, एक्सटेंशनल, क्लास और डिनोट्स, तीनों चीजें सही हैं, तो दिस इज द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, नो, both statement 1 and 2 are incorrect, no, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, no, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct, so your option 4 is the answer,
ऐसे ही एग्जाम में करना है आपको. So that's it for today's session. Hope you like this video, and if you like this video, so do share, like and subscribe and comment down below for any feedback. And if you want more videos, more detailed explanations regarding some topics, please comment down below for that. That's the only way I can know कि कौन से टॉपिक्स आपके रहते हैं या रह गए हैं और कौन से टॉपिक्स आपको नहीं समझ आए हैं, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.